In the end of the poem, I will tell you the true interpretation of the true message, true essence of this beautifully written poem, A Thing of Beauty. But first and all, we will discuss about the title, the heading, A Thing of Beauty, written by John Keats. So, student, first and all, let's comment that what do you mean by a thing of beauty, and what according to you a thing of beauty is? How would you define a thing of beauty? The thing that we need to understand is a thing of beauty is a symbolic poem. We do not have to take its literary meaning. Okay, generally, in general sense, the word beauty is used for what is the literal meaning of the word beauty? In present time, we see that the word beauty is generally used for external beauty. Word beauty is generally used for physical attraction, external attraction, or external beauty that we feel from our eyes. Even the great Shakespeare also said, beauty lies in the beholder's eyes. But in this particular poem, and not only in this particular poem, many great people always talk about that beauty is an inner essence. Beauty is an inner thing rather than an external thing, rather than a physical thing. So we do not have to look at something for its physical beauty. We have to look at it for its internal beauty rather than its physical beauty. That's what the poet in this particular poem also emphasizes. And here, with this symbolic heading, the title of the poem is a symbolic one, it's a metaphorical one, and through this title, the poet is emphasizing on the fact that everything that we see from our eyes and everything which is spiritual, also everything that exists, whether internally or externally, whether in this outer infinite universe or inside us, another infinite spiritual us, spiritual existence of everything, in culmination of all these things is actually a thing of beauty. So whatever exists which is following its true trait, which is following its true path, is actually a thing of beauty. So according to the poet, whoever is following its real dharma, whoever is following its real spiritual path, whoever is following its duty, its natural trait is actually a thing of beauty here. So he's not talking about only physically beautiful things. Here the poet is talking about everything, including you, is a thing of beauty. What is to follow the dharma? Following the dharma means, students, what is the dharma of the tree? The tree's dharma is to give us oxygen and give us shade. So it is following its dharma. The sun's dharma is to give us light and heat. So sun is following its dharma. So just like that, everything which whoever is following their dharma, and whether we are following our dharma or not, that's the most important thing. So whichever thing which is following its dharma is actually a thing of beauty according to this poet. So first and all, we would also get to know about that this poem is actually an excerpt. It's not the full poem. This excerpt is taken from the poet Endymion, written by the John Keats himself. So you can read about the poet section part a little bit to keep the name of the poet in mind and some other information about the poem or the poet. So in the first stanza, the poet will define you according to him what a thing of beauty is. I first and all asked all of you to tell me what a thing of beauty for you, and how would you define a thing of beauty? In what sense would you define thing of beauty? Whether a thing of beauty you see only physically or spiritually, that's what you need to tell us in the comment box. Now first and all, let's see the definition of the poet, how he has defined what a thing of beauty is according to him. So first and all, he is explaining us that a thing of beauty is a joy forever. So according to him, according to John Keats, what a thing of beauty is? A thing of beauty here, student, is the subject, and here is to breathing, everything is the predicate. Okay, and this predicate is about which subject? This predicate is about this subject, a thing of beauty, has been explained and has been described by this full predicate. Okay, तो यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो सब्जेक्ट है, और ये सब ईद से लेके यहाँ तक पूरे उसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, उसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. तो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट हमारे? व्हाट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग, ही इज डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अकॉर्डिंग टू हिम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एक्चुअली अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. किसका लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी का लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होता है. और किसकी ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती? नथिंगनेस. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इट मींस टू से दैट इट नेवर come to an end. It is an eternal thing. And what is an eternal thing according to the poet? Which never diminishes at all. It's a thing of beauty. Okay, so it
will never pass into nothingness. it यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए, कि थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। इसकी जो लवलीनेस है ये हमेशा इंक्रीज होती रहती है। किसकी? थिंग ऑफ ब्यूटी की। और थिंग ऑफ ब्यूटी कभी नथिंगनेस में नहीं जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, ये हमेशा चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पोएट। बट will keep a boy quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So all these things are what? All these things are being described to what? It is describing a thing of beauty. ये सब चीज किसको डिस्क्राइब कर रहा है? थिंग ऑफ ब्यूटी को। पोएट क्या बोल रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी आपको हमेशा जॉय प्रदान करेगी। इट्स अ जॉय फॉर एवर एंड इट्स लवलीनेस नेवर इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a boy quiet for us. But will keep a boy quiet for us means to say that कि ये thing of beauty जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक बॉयर की तरह हमेशा ही हमें शांति प्रदान कराता है, क्वाइट हमें हमें रखता है। ठीक है, ये QUIET क्वाइट होता है। एक बॉर्ड क्या होता है? बॉर्ड आपका ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका बॉयर होता है कि सड़क के बीच जब दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हों, इस तरीके से कोई घना जगह है जहाँ पे छाया आ रही है, एक ठंडक मिल रही है और पूरा सड़क गर्म है, या गर्मी का महीना है, गर्मी के बीच महीने के बीच में, गर्मी के समय के बीच में, या गर्म दिन, एक हॉट वेदर, एक हॉट और वार्म डे पे ऐसा कोई बॉयर अगर आपको मिल गया जो आपको ठंडक प्रदान कर रहा है, तो इसको बॉयर बोलते हैं। ये जो शेप में है इसको बॉयर बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉयर से किसको डायरेक्ट मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहे हैं पोएट? पोएट आपको डायरेक्ट मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी को। सो अकॉर्डिंग टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ बॉयर। ओके, जो मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी बॉयर की तरह हमें हमेशा शांति प्रदान करता है, क्वाइटनेस प्रदान करता है। और ये जो स्लीप है, कैसी स्लीप? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, स्लीप नाउन है यहाँ पे जो इस एडजेक्टिवल फ्रेज से डिस्क्राइब जिसको किया जा रहा है। किस स्लीप की बात हो रही है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी को यहाँ पे पोएट ने कंपेयर कर दिया है अ स्लीप से, मेटाफोरिकली। यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है स्टूडेंट्स, कि स्लीप और अ थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया। जैसे अ बॉयर और अ थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया, ठीक उसी तरीके से अ थिंग ऑफ ब्यूटी और अ स्लीप को कंपेयर किया गया, नींद को। जैसे एक ऐसा नींद हो जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए ठीक उसी तरीके से है, एक ऐसे नींद की तरह, एक मीठे ख्वाब से भरे हुए एक अच्छे नींद की तरह होता है हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। और यही थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या प्रदान कराता है? क्वाइट ब्रीदिंग प्रदान कराता है। ठीक है, इसमें एलिट्रेशन भी यूज हुआ है स्टूडेंट्स, रिपीटेशन भी, यहाँ पे क्वाइट है और यहाँ पे क्वाइट है। और ये मेटाफॉर भी यूज हुआ है, मेटाफॉर, कि यहाँ पे आपको स्लीप का कंपैरिजन डायरेक्ट कर दिया है पोएट ने थिंग ऑफ ब्यूटी से, और बॉयर का कंपैरिजन डायरेक्ट कर दिया है पोएट ने थिंग ऑफ ब्यूटी से। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या क्या करता है? थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए एक ऐसे नींद के समान है जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है। थिंग ऑफ ब्यूटी ही हमें गुड हेल्थ प्रदान कराता है। थिंग ऑफ ब्यूटी ही हमें क्वाइट ब्रीदिंग प्रदान कराता है। क्वाइट ब्रीदिंग, शांत ठंडा ब्रीदिंग, जिस समय आप लगातार 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद एक शांत रिदमेटिक ब्रीदिंग जो होगा, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, एक एब्सोल्युटली बैलेंस में, जो मनुष्यों का धर्म भी है बैलेंस बना के रखना, उस तरीके की ब्रीदिंग आपको प्रदान कराता है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी आपका अ जॉय फॉर एवर है। its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a boyer quiet for us। और यही हमारे लिए बॉयर को ठंडा रखता है। बॉयर को हमारे लिए ठंडा कौन रखता है? ये जो बॉयर है स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो उधर, ये जो बॉयर है ये ठंडक रहता है इसके अंदर। यहाँ पे आप खड़ा रहोगे तो आपको ठंडक फील होगा। तो इसको ठंडक कौन प्रदान करा रहा है? इसको ठंडक प्रदान करा रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट। ठीक है, पोएट के अनुसार सब कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जिस जिस चीज ने इसको शक्ति दी है ठंडक प्रदान कराने का, वो चीज भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और थिंग ऑफ ब्यूटी को हमें यहाँ पे फिजिकली नहीं देखना है, थिंग ऑफ ब्यूटी को हमें स्पिरिचुअली देखना है। वो चीज जो इसमें यह शक्ति प्रदान करा रही है, जिससे वो ठंडक मिल रही है, उस चीज को थिंग ऑफ ब्यूटी बोल के पोएट यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। और एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही वो चीज है जो गहरी नींद हमें प्रदान कराता है, एक ऐसी नींद हमें देता है जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो। और थिंग ऑफ ब्यूटी ही हमारे लिए गुड हेल्थ भी है और जो हमें क्वाइट ब्रीदिंग भी कराता है। सब हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ही कराता है अकॉर्डिंग टू दिस पोएट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? जॉन कीट्स, हु इज वेरी फेमस फॉर इट्स रोमांटिक poems, who is a well-renowned romantic poet who was famous for his romantic poems. Now let's read the second stanza. So now student, as you see in the first stanza, the poet has defined us what a thing of beauty is and what according to him a thing of beauty. Now in this poem he will talk about the importance of thing of beauty, and how can we know the importance of something? Only when we understand the negativity and struggle ऑफ आवर लाइफ। हमें किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस कब पता चलती है?
जब वो चीज़ नहीं होती है, जब उस चीज़ की कमी हमें खलती है, तब जाके हमें उस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो यहाँ पे जो हमारे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ हैं, हमारे लाइफ में जो बहुत सारे स्ट्रगल हैं, उन सब स्ट्रगल को जब आप जानोगे तब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली माइंड में समझ में आएगा थिंग ऑफ ब्यूटी का इंपॉर्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वो आपको ये बता रहे हैं, देयरफॉर on every morrow are we reading a flowery band to wind us to the earth, despite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So poem is not very rhythmical, students. So in this stanza, the poet is talking about our daily life, the things associated, the things related to our life, which will further explains and which will further emphasize on the fact how thing of beauty is very important for us, so first and all he explains us, so therefore on every morrow means student the following day, tomorrow, it's the short form of tomorrow. Poet is asking to all of us, are we reading a flowery band? तो क्या हम एक फ्लावरी बैंड नहीं बुन रहे होते हैं? मतलब क्या हम अपने सोच में, क्या हम अपने मन में ऐसे विचार नहीं आ रहे होते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचार, खूबसूरत खूबसूरत विचार, जो आपको पृथ्वी से और जीवन से कनेक्ट करके रखती। यहाँ पे जो रीडिंग अ फ्लावरी बैंड है, ये सिंबॉलिकली यूज हुआ है स्टूडेंट, विच इज सिंबॉलिकली रिफरिंग द ब्यूटीफुल थॉट, द पैटर्न ऑफ ब्यूटीफुल थॉट दैट कीप्स ऑन कमिंग इन आवर माइंड डे आफ्टर डे। प्रत्येक दिन जो हमारे मन में अलग अलग तरीके के सुंदर सुंदर विचार, जो हमारा एक इंटेंशन होता है, जो हमारा एक शौक होता है, जो हमारा एक पैशन होता है, जिसको करने के लिए ही हम जिंदा हैं, जिसको पाने के लिए ही हम जिंदा हैं, तो उस बात को यहाँ पे पोएट ने सिंबॉलिकली मेंशन किया है फ्लावरिंग बैंड से, कि हम एक माला गुथते रहते हैं, हम एक माला बुनते रहते हैं अपने मन में ही। तो यहाँ पे ये किस चीज को दिखा रहा है सिंबॉलिकली? यहाँ पे ये दिखा रहा है मेटाफोरिकली, हमारे अंदर जो विचार आते हैं, हमारे अंदर जो ब्यूटीफुल सोच आते हैं, जो हमें पृथ्वी से बाइंड करता है, उन सब चीजों को दिखा रहा है। तो हमारे मन के अंदर जो सुंदर विचार आते हैं, जिसको यहाँ पे वो माला गुथने से पोएट सिंबॉलिकली दिखा रहा है, यही विचार कहीं ना कहीं हमें अर्थ से और जीवन से बांध के रखती है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में सिर्फ इतना ही रहेगा कि सुबह में उठना है, खाना है, पीना है, सोना है, फिर उठना है, फिर अपना काम करना है, तो फिर जीवन नीरस जाएगा और जीवन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। हर एक आदमी का अपने उसके मन के अंदर जो अच्छे विचार होते हैं, जैसे किसी को घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, तो उसके अंदर रहता है कि फ्यूचर में मैं भी ट्रैवलिंग कर पाऊंगा, मैं भी मोटो ब्लॉगिंग कर पाऊंगा। जिसके अंदर जो भी पैशन है, उस पैशन को पाने की इच्छा हर एक दिन उसके अंदर आती है, और वही इच्छा कहीं ना कहीं उसको ड्राइव करती है जीवन को आगे जीने से, और वो इस तरीके से एक चक्र में बधा हुआ रहता है, जो फाइनली उसको अर्थ के चक्र से और जीवन चक्र से बांध के रखता है। इसके बावजूद देखो, हमारे अंदर जो ये अच्छे अच्छे विचार आते हैं, जो हमारे अंदर जो सुंदर विचार आते हैं, ब्यूटीफुल विचार जो आ रहा है यहाँ पे, जिसको पोएट रीडिंग अ फ्लावरी बैंड बोल रहा है सिंबॉलिकली, तो ये जो अच्छे अच्छे विचार आपके मन के अंदर आ रहे हैं, इसको आप स्टूडेंट्स लिख लोगे, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड मीन्स टू से दैट कि आपके अंदर जो अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल थॉट्स को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ब्यूटीफुल थॉट्स। तो ब्यूटीफुल थॉट्स जो आपके मन के अंदर आते हैं, इसके बावजूद कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारा डिस्पोर्डेंस हो, मतलब सॉरो हो, दुख हो, आपके जीवन में बहुत सारा दुख हो, उसके बावजूद आपके जीवन में अच्छे और सुंदर विचार आएंगे, जो आपको लाइफ से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। और भले ही आज पूरे संसार में, भले ही आज पूरे संपूर्ण ह्यूमन संसार में, ह्यूमन वर्ल्ड में आपका डर्थ हो गई है किस चीज की? नोबल नेचर की। मनुष्यों के अंदर जो अच्छे मानवीय गुण थे, मानवीय जो उनका नेचर था, जो स्वभाव था, उसकी कमी आ गई है। डर्थ मीन्स होता है स्टूडेंट लैक, किसी भी चीज की कमी होना है। इन सबको पहले मिटा देते। देखो, डर्थ मीन्स स्टूडेंट होता है आपका किसी भी चीज की कमी हो जाना। तो यहाँ पे पोएट किस चीज की कमी की बात कर रहे हैं? नोबल नेचर। मनुष्यों के जो नोबल नेचर है उसमें गिरावट आ गया है, अब क्रूएलिटी हो गया है, इन ह्यूमन नेचर ज्यादा छा गया है, अमानवीय गुण, अमानवीय नेचर पूरे पृथ्वी पे ज्यादा छा गया है, और पूरे मानव समाज पे हम सब लोग ग्लूमी डेथ से गुजर रहे हैं, या ज्यादातर लोग ग्लूमी डेथ से गुजर रहे हैं, यानी सभी के जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। हमारे अंतरात्मा के ऊपर क्या छाया हुआ है? यहाँ पे जो ग्लूमिंग डेज है, ये हमारे जीवन में छाए हुए अंधेरे को दिखा रहा है। ग्लूमी मीन्स होता है अंधेरा, तो हम लोग एक अंधेरे पल से गुजर रहे हैं। मतलब हम लोग हो सकता है कि ग्लूमी डेथ से गुजर रहे हो, हमारे जीवन में अनहेल्दीनेस छा गया हो, या फिर हमने ओवर डार्केंड वेज अपना लिए हो। ये OVER है स्टूडेंट, ओवर
एंड डार्क एंड वेज, आपने गलत रास्ते पकड़ लिए हो अपने जीवन में, और ये सब करके आप किसी न किसी चीज की सर्चिंग में लगे हुए हैं, आप अपने जीवन में भटक गए हैं, ठीक है। बट इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, वो एक चीज है, क्या चीज है, आपके मन के भीतर जो सुंदर विचार आ रहे हैं, जिसको पोएट ने यहाँ पे रीडिंग अ फ्लावरी बैंड बोला है। हम जो ये सुंदर विचारों की माला गूंथ रहे हैं, यही सुंदर विचार कहीं न कहीं आपके जीवन पे, आपके स्पिरिट जो अभी डार्कनेस में चली गई है, उसको वापस से लाइट में लाएगा। इसको वापस से आपके जीवन में अंधेरे से दूर करेगा। कौन? आपके मन में जो आ रहे सुंदर विचार हैं, अर्थात वही ब्यूटीफुल थिंग। इन सभी नेगेटिविटी के बावजूद, यहाँ पे जो इन स्पाइट ऑफ ऑल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो आपका कंजंक्शन है, ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि भले ही आपके जीवन में बहुत अत्यधिक दुख है, क्रूएलिटी आ गई है मनुष्यों के समाज में, डर्थ ऑफ नोबल नेचर हो गया है, ग्लूमी डेज हो गया है, अनहेल्दीनेस छा गया है, ओवर डार्क एंड वेज आपने अपना लिए हैं, इन सब के बावजूद वो एक चीज है, अर्थात जो आपके मन के अंदर जो सुंदर विचार आ रहे हैं, वही कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा के ऊपर, वह परम तत्व जो आपके भीतर से भी होके गुजरी है, अर्थात आपके अंतरात्मा जो अभी डार्कनेस में चली गई है, उसके ऊपर से पर्दा अर्थात पॉल कौन हटाएगा? वो जो सुंदर विचार आपके मन के भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं, उसी ब्यूटीफुल चीज की वजह से, कोई ना कोई एक ऐसा चीज है जो हमें ड्राइव करता है जीवन के लिए, वही चीज हमें कनेक्ट करा रहा है, और वही चीज हमारे अंतरात्मा को अंधेरे से दूर करके, हमारे जीवन से अंधकार दूर करके हमें प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दिखाएगा, और हम परमानंद अवस्था में पहुंचेंगे, हमें जीवन के परम सत्य का आभास होगा, हम उस अल्टीमेट सत्य का आभास कर पाएंगे, वही परम तत्व का ज्ञान करना है हमें। प्रीवियस स्टैंजा में पोएट जिस इनर थॉट की बात कर रहे थे, प्रीवियस स्टैंजा में पोएट जिस ब्यूटीफुल चीज की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन से अंधकार दूर करेगा, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? यहाँ पे रैंडमली वो किसी भी चीज का एग्जांपल दे रहे हैं, वो स्पेसिफिकली जिस चीज को डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ उसी चीज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, वो सिंबॉलिकली किसी भी चीज को रैंडमली पिक आउट कर रहे हैं। जैसे जो नेचुरल चीजें हैं, सन, मून, ट्रीज, चाहे ओल्ड हो या यंग, ये सब मेन सोर्स ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ। अर्थ पे जीवन का मेन स्रोत है, सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गया। ट्रीज अपने धर्म का पालन कर रही है, ये स्प्राउटिंग सैडी बूंद दे रही है, ये छाया प्रदान कराती है, किसके लिए? सिंपल सीप के लिए। सिंपल सीप यहाँ पे सिंबॉलिकली किसको रेफर कर रहा है? इनोसेंट लिविंग बींग्स, लोगों को जो अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। सीप से हमेशा मासूम जीवों को दिखाया जाता है, जो बेचारे जेंटल हैं, इनोसेंट हैं, निर्दोष प्राणी हैं, उनको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सीप से वो डिनोट कर रहे हैं इनोसेंट क्रीचर्स को। इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट आपका ये बोल रहा है कि मतलब एग्जाम्पल दे रहा है कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सन है, मून है, ट्रीज है, चाहे ओल्ड हो या यंग हो, जो आपका ट्रीज का बता रहा है कि सैडी बूंद प्रदान कराता है, किसके लिए? सिंपल लिविंग बींग्स के लिए। और उसके बाद आपका डेफोडिल्स है, तो डेफोडिल्स एक पर्टिकुलर कोई एक फ्लावर की बात नहीं हो रही है, वो सभी सुंदर दिखने वाली चीजें, दिखने वाली नहीं, जो अपने धर्म को फॉलो कर रही हैं, जो अपने ट्रू इनर ट्रेट को फॉलो कर रही है। इसमें संपूर्ण फ्लावर समाज को डिनोट कर रहा है, और रैंडमली कोई एक वर्ड यूज कर लिए है पोएट यहाँ पे। तो ये डेफोडिल्स आपका कहाँ पे रहते हैं? डेफोडिल्स रहते हैं ग्रीन वर्ल्ड में। और यहाँ पे डेफोडिल्स से आप स्टूडेंट्स ये सिंबॉलिकली सभी लिविंग बींग्स को एक तरीके से डिनोट कर रहे हैं। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली द फ्लावर्स, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये सभी डेफोडिल्स आपका कहाँ पे रहते हैं? ये ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। एंड फिर आपका कौन कौन सी चीजों को ब्यूटीफुल चीजों में शामिल किया है पोएट ने? क्लियर रील्स। ये क्लियर रील्स भी किसी को कुछ ना कुछ प्रदान कराता है। क्लियर रील्स हमें क्या प्रदान कराता है? कूलिंग कवर्ड प्रदान कराता है, अर्थात हमें ठंडक पहुंचाता है। ये हॉट सीजन के बावजूद, समर सीजन है, फिर भी आपको जो क्लियर रील्स है, यानी बहता हुआ पानी, जो छोटे मोटे बहते हुए पानी होते हैं कहीं किसी भी जगह पे, वो हमारे लिए कूलिंग कवर्ड प्रदान कराता है। तो यहाँ पे आप देखो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब दूसरे को कुछ ना कुछ प्रदान कर रही हैं, अर्थात सब अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जैसे सन हमें प्रकाश और गर्मी देता है, मून पृथ्वी का बैलेंस बना के रखता है, मून पृथ्वी को 30 डिग्री सेल्सियस पे टिल्ट करके रखता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे समुद्र का टाइड्स और बाकी सब चीजें बैलेंस में है। ट्रीज जो है वो हमें ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करती है और छाया देती है, ठीक है। ये सब किसके लिए देती है? ट्रीज, मून, सन, ये सब किसके लिए दे रहे हैं? सिंपल सीप के लिए, अर्थात इनोसेंट प्राणियों के लिए दे रहे हैं, जो अपने धर्म का फॉलो कर रहे हैं। और डैफोडिल्स अर्थात वो सभी लिविंग बींग्स जो कहाँ पे रहते हैं? इस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, अर्थात अर्थ पे रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पे सिंबॉलिकली किसको रेफर कर रहा है? ग्रीन वर्ल्ड आपका सिंबॉलिकली रेफर कर रहा है अर्थ को, कि ये सभी चीजें कहाँ पे रहती हैं? अर्थ पे रहते हैं।
और जो रील्स है यानी झरना, बहता हुआ पानी, ये भी हमें ठंडक प्रदान कर रहा है। तो हम किसी को क्या दे रहे हैं? आर वी फॉलोइंग आर ट्रू इनर ट्रेट और नॉट? दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक। एंड इफ वी आर फॉलोइंग आर ट्रू इनर ट्रेट, देन वी आर आल्सो ब्यूटीफुल लाइक ऑल दीज थिंग्स व्हिच प्रोवाइड सम और द अदर थिंग्स टू अदर्स। जो दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहा है, जो अपना धर्म फॉलो कर रहा है, उनके अंदर जो ट्रू इनर क्वालिटी है, जो उनके अंदर जो नेचुरल गुण समाहित है, वो अपने उस गुण को फॉलो कर रहे हैं, अपने उस नेचुरल ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें ब्यूटीफुल थिंग्स की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू दिस पोएट। सो ही विल एक्सटेंड दैट आइडिया एंड ही विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ सम मोर ब्यूटीफुल थिंग्स सच एज द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट क्या होता है? घने जंगल में जहाँ पे फुल ऑफ लाइफ रहता है। यहाँ पे घना जंगल एक ऐसा चीज है जो किसी एक चीज को लाइफ नहीं दे रहा है, इट्स अ फुल ऑफ लाइफ, बहुत सारे चीजों को लाइफ सपोर्ट कर रहा है। तो पिछले स्टैंजा में जो आइडिया था कि जो दूसरे को कुछ भी प्रदान करा रहा है, जो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, जो अपने ट्रू इनर ट्रेट को फॉलो कर रहा है, वो सभी चीजों को ब्यूटीफुल चीजों की कैटेगरी में जॉन किट्स ने रखा है। तो यहाँ पे वो इसका एग्जांपल भी दे रहे हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। फिर वो मस्क रोज का भी एग्जांपल दे रहे हैं जो खिलता है और हमें मन की शांति, कामनेस और क्वाइटनेस प्रदान कराता है। एंड फर्दर ही सेज दैट एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead। मतलब जब वो ब्यूटीफुल चीजों का एग्जांपल दे रहे हैं तो he is not talking about specifically those things which we considered as beautiful thing। He is talking about those genuine spiritual things which actually connect us to that ultimate thing and remove the pall from our dark spirits and shed light of enlightenment and knowledge upon ourselves। So what he is saying further कि रैंडमली तो किसी किसी चीज का एग्जांपल दे ही रहे हैं, जैसे मिड फॉरेस्ट ब्रेक हो गया, फेयर मस्क रोज हो गया, और फाइनली ही इज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ डूम्स, द लास्ट डे, द डेथ ऑफ विच पीपल, ऑफ द माइटी पीपल। ओके, मतलब जो महान लोग हैं, ग्रेट पीपल, लोगों का डेथ, मृत्यु भी किसी को कुछ ना कुछ प्रदान कराती है। व्हेन द डेथ इज देयर फॉर अ कॉज, for the nation, for something greater cause, then death has also followed its path, death has also followed its true dharma। okay, मतलब मृत्यु के पीछे का पर्पस अगर महान है तो मृत्यु भी महान हो जाता है। समझ रहे हो पॉइंट? जैसे यहाँ पे द पोएट इज सेइंग दैट कि उन्होंने अभी तक जितने भी इमेजिन किया है, जितने भी लोगों के ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, यानी महान लोगों के मृत्यु के बारे में जो उन्हें सुना है, द माइटी डेथ इज रेफरिंग टू द डेथ ऑफ great people, and dooms means to say that the last day, the end of something, it means death। so यहाँ तक कि मृत्यु भी ब्यूटीफुल चीजों में आती है यदि वो सही कॉज के लिए हो। if the cause of that death is appropriate, then the doom or death is also a thing of beauty according to this poet। you can't give the example of the death of Osama bin Laden है, isn't it? उसके डेथ का एग्जांपल नहीं दे सकते। ओसामा बिन लादेन का डेथ कोई अच्छे कॉज में नहीं हुआ, तो उस डेथ को इस कैटेगरी में हम शामिल नहीं करेंगे। इस कैटेगरी में महान मृत्यु की बात हो रही है जो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए हुई, जैसे भगत सिंह, ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द freedom of our country, our great beloved country। so that death, that doom is actually the mighty death which had served a cause for the humanity, for the welfare of humanity, for the welfare of something। मतलब आपके किसी भी एक्ट से, चाहे वो फिजिकल एक्ट हो या स्पिरिचुअल एक्ट हो, उससे किसी को क्या मिल रहा है, सामने वाले को उससे किसी के लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन ओनली, आर यू गिविंग समथिंग बैक टू द नेचर, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। So nature is giving you so much things such as forest break, forest break is providing the life to so many creatures। so what are you giving them back? so even your death is giving something to the society, to the humanity, to the country, then your death, then the doom, then the last day of your life is also a beautiful thing because it has given back something to the nature, it has given back something to the society, it has given back something to the humanity। that is the most important thing the poet is talking about here। whatever he has imagined of the death of the great and mighty people, that is also a thing of beauty, and that is why further he explains all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। तो जितनी भी लवली टेल्स उन्होंने आज तक सुनी है या पढ़ी है, वो सभी चीज एक एंडलेस फाउंटेन की तरह ऊपर से, हेवन से हमारे ऊपर बरस रही है। चाहे वो फॉरेस्ट ब्रेक हो, चाहे वो महान आत्माओं का मृत्यु, महान आत्माओं का अंत, जो महान आत्मा परमात्मा से जाके मिल गए, जो यहाँ पे रिसाइकलिंग प्रोसेस की बात हो रही है,
और वो हर एक चीज जो उन्होंने पिछले स्टैंजा में एक्सप्लेन किया, वो सभी चीज हमारे ऊपर हमें हेवन से प्रदान हो रही है। एक स्पिरिचुअल लिंक है, उस लिंक को जानने और समझने की आवश्यकता है। वो लिंक से हमें ये सभी चीजें मिल रही है। आपने जो लास्ट स्टैंजा में पढ़ा, जैसे सन है, मून है, ट्रीज है, ये सभी चीजें हमें हेवन से मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस पोएम एंड पोएट। और ये सभी चीज हमारे ऊपर वर्षा की तरह हेवन से गिर रही है। हेवन स्प्रिंग, हेवन के किनारे से ये हम हमारे ऊपर गिराई जा रही है। इन सभी चीजों को पोएट ने ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे बोला है। सो फाइनली स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द message of the poem. Okay, after all, what the poet wants to convey us through this poem. Conclusion of this poem is, in simple words, everything that exists is a thing of beauty. The beauty word has not been used here for its literal meaning. The message is that whether we are following our dharma or not, are we giving to others, like forest break, bore quiet, clear reels, the sun, even our death can be grandeur. So this is the message कि हर एक चीज जो अपने धर्म को फॉलो कर रही है, जो अपने ट्रू इनर ट्रेट को फॉलो कर रही है, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है, वॉयर क्वाइट, क्लियर रेल, सन, यहाँ तक कि हमारा मृत्यु भी अगर समाज के लिए भले का काम कर रहा है, यदि ह्यूमैनिटी के कॉज के लिए हुआ है, इफ आवर डेथ हैज हैपेंड बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर इज इट गिविंग समथिंग, हमारे मृत्यु से अगर किसी को कुछ प्रदान हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रैंडियर, दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. So this is the real message of this poem, students. I hope you guys would have understood the real message. और आपका इसके बारे में कुछ विचार है, what would you say about the true interpretation or real message the poem and the poet wants to convey? You can share us in comment box. And if you have any problem in doing the answer from this question, or if you need a proper PDF of summary and theme of the poem, you can tell us in the comment box. Students, if you like our channel or content, you can show your help towards our channel, giving some economical support. So you can support us through the UPI IDs which have been provided to you on a screen. Thanks all of you for watching this video. See you in the next video.